Hello friends, welcome to this lecture series on microprocessor 8085. This is the fourth lecture of this series in which we will be studying about the control unit. So let's get started. In our previous lecture we have seen about this ALU. What is ALU? That is arithmetical and logical unit. We have seen that, we have discussed that whatever the calculations and whatever the arithmetic operations are to be done in the process, it is done in this arithmetical and logical unit only. Okay, and also we have seen in our previous lecture that any processor, it can be divided into these three major building blocks. First is ALU, second is CU, it stands for control unit, and third is register. Any processor from 8085, 8086 to Pentium or our recent version Intel I series, any processor, these three major portions are there. In this lecture we will be studying about this second portion, that is control unit. Control unit is very important portion. It tells the other part. ALU will perform the arithmetic operations, but how to perform the ALU, whether which arithmetic operations are to be performed, these signals, various signals are given by this control unit only. And also in the data transfer between the various registers, this CU is controlling the various data flow between these registers, from one register to other register, how the data is flowing, when the data has to be flown, how much data has to be flown, all those things are controlled by this control unit. So कंट्रोल यूनिट के नाम से ही पता चलता है, वो कंट्रोल करता है वेरियस जो अदर पार्ट्स हैं प्रोसेसर के, जैसे कि एलयू हो गए, रजिस्टर हो गए, और भी आपके मेमोरी हो गए, डिफरेंट जितने पार्ट्स होते हैं प्रोसेसर के, और भी जो पार्ट्स प्रोसेसर के एक्सटर्नली इंटरफेस किए जाते हैं, सबको कंट्रोल करता है। सबको क्या करना है ये इन्फॉर्मेशन आपको कंट्रोल यूनिट के ही द्वारा पता चलती है। कंट्रोल यूनिट से ही सिग्नल जाएगा कि रीड करना है या राइट करना है। कंट्रोल यूनिट से ही पता चलेगा कि ये ऑप कोड फेच चल रहा है या मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ऑल दोज ऑपरेशंस, whatever the operations is going on in the different parts of this processor, it is controlled through this control unit only. So now we will study about what are the various control signals that are generated in this control unit. This is the block diagram of this control unit. Any control unit can be in broadly it can be divided into these three portions: instruction register, instruction decoder, and control and timing section. Whenever the instruction is there, it will be fetched in this instruction register part. After that it will come in this instruction decoder. When the instruction here, the instruction will be decoded. In this portion instruction will be decoded, and now come the final, it is the control and timing signal. From here, according to the instruction, the signals are generated, and these signal will go into the various other parts of the processor. So now we will study about each signals coming in and coming out of this control unit section. Here you are seeing that this is X1 and X2. These X1 and X2 is means two pins in the processor in which you have to connect your oscillator. We have already studied that this processor is a clock driven device, so you have to give the reference clock. So these are the two pin in which you are placing this oscillator or crystal oscillator. Crystal oscillator is used because it is the most stable type of oscillator, which in which the frequency is highly stable. So that two outputs of that crystal oscillator is connected in these two pin, and this ground and 5 volt, these two are the power supply pins. So, and also if you have any other devices which are clock driven, which needs the clock, and you want that this same clock frequency in which that your processor is working, that same clock frequency should be
obtained in this second unit also. Then from here this output clock is there, you can take this output clock and synchronize your other peripherals. आपके पास अगर कोई और डिवाइस है जिसको क्लॉक की रिक्वायरमेंट है प्रोसेसर के अलावा, प्रोसेसर के साथ आपने ऐसी कोई डिवाइस, ऐसा कोई इंटरफेसिंग वाली चीज़ लगाई है जिसको क्लॉक चाहिए, और आप चाहते हैं कि प्रोसेसर जिस क्लॉक से काम कर रहा है, सपोज 6 मेगाहर्ट्ज आपने यहाँ पे लगाया और प्रोसेसर इंटरनली डिवाइड कर लेता है 2 से 3 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, तो आप चाहते हो कि आपको भी सेम क्लॉक पे वो भी काम करे, तो यहाँ से आप जो पिन होती है आप काम कर सकते हो। ये रेडी सिग्नल होता है कि जैसे कोई स्लो पेरिफेरल्स है तो प्रोसेसर की स्पीड तो फास्ट होती है, बट अदर दो पेरिफेरल्स विच आर कनेक्टेड टू द प्रोसेसर may not be as much fast. Suppose the printer is there, and if there are many types of printer, like inkjet printer is there, it is very slow printer, so it has to synchronize with the speed of your processor. So this ready signal is there to synchronize the peripherals which are working slowly. Okay, we will study in our in more detail about this signal in the later lectures. Now these are the control signals: read, write and ALE, RD bar, WR bar and ALE bar. Whenever any memory location is defined by this address bus, then this read signal and write signal, it will tell whether I have to read it और राइट इट। जब भी मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है तो प्रोसेसर को क्या करना है, रीड करना है वहाँ से डेटा या राइट करना है वो वाला डेटा। रीड मतलब वो उस डेटा को पढ़ना है, वहाँ से डेटा को लेके आना है। राइट का मतलब होता है कि आपको डेटा उसमें लोड करना है। तो ये रीड और राइट सिग्नल्स के द्वारा ही आपको ये पता चलेगा कि मेमोरी में रीड करना है या राइट करना है। एड्रेस लैच इनेबल होता है कि प्रोसेसर की जो बस है A0 से A15 तक वो टोटली एड्रेस बस में काम कर रही है या कि अभी उस पर डेटा है। क्या होता है कि प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में की एड्रेस बस होती है 16 बिट की एड्रेस बस होती है। आपको बता देते हैं, प्रोसेसर में 16 बिट की एड्रेस बस होती है और 8 बिट की डेटा बस होती है। ये हमने स्टडी किया। जैसे ये डेटा बस है, यहाँ पे ये 8 बिट की है, और जो मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने वाली बस होती है, द बस विच आइडेंटिफाई दैट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द मेमोरी इज 16 बिट। बट ये इंटरनली होती है, लेकिन एक्सटर्नली माइक्रो प्रोसेसर के पास जो बस के लिए जो पिन होती है वो केवल 16 पिन होती हैं। द 16 पिन्स आर देयर। सो इसी की 8 पिन को sometimes it is used as data bus and sometimes it is used as 16 but why it is done? It is done to save the numbers of pin, because प्रोसेसर के में 8085 की 40 पिन आईसी होती है। ठीक है, अगर आप 40 पिन आईसी में से 24 पिन सिर्फ ये बस को ही दे दोगे तो आपके पास अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पिन्स ही नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आपको पिन्स का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए दीज एड्रेस बस एंड डेटा बस दीज आर मल्टीप्लेक्स। ठीक है, तो शुरुआत की जो लाइन होती है A15 से A8 तक, ये तो कम्प्लीटली एड्रेस बस ही होती हैं। ठीक है, लेकिन बाकी यहाँ पे जो अदर लाइन होती हैं AD7 से AD0 तक, ये मल्टीप्लेक्स रहती हैं। ये किसी साइकिल के लिए ये डेटा बस की तरह काम करेगी। जैसे ये है, तो ये जो पोर्शन होता है ये जब इनिशियली मतलब आप समझ लीजिए कि कभी ये डेटा बस की तरह काम करेगी या कभी एड्रेस बस की तरह काम करेगी। तो ये कब ये एड्रेस बस की तरह काम करना है, कब इस पे डेटा ट्रेवल करना है, ये चीज़ जो है ALE के ही द्वारा ये संचालित किया जाता है। ठीक है, अपने और आगे के लेक्चर में इसको हम डीप में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि जो डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ दिस एड्रेस बस, इसको आप कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो कि एड्रेस लैच इनेबल, इसका फुल फॉर्म है एड्रेस लैच इनेबल, दैट डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ दिस एड्रेस बस इज डन थ्रू दिस सिग्नल। ओके, क्योंकि टाइम शेयर्ड बेसिस पे यूज किया जाती है।
जो बसेज हैं, जो वायर्स हैं, उस पर कभी तो आपका एड्रेस ट्रेवल करेगा और कभी तो डेटा ट्रेवल करेगा, ठीक है। और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपका ये ALE को यूज़ किया जाता है। ये आप सिंपल सा आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये तीन आपके जो है होते हैं ये कंट्रोल सिग्नल्स हो गए, ये तीन सिग्नल आपके कंट्रोल हो गए, ध्यान में रखिएगा, रीड, राइट और ALE। इसी तरह से आपके कुछ स्टेटस सिग्नल होते हैं, ठीक है। स्टेटस सिग्नल जैसे IOM बार है, तो इससे आपको कंट्रोल यूनिट पता रहेगी कि ये इनपुट ऑपरेशन चल रहा है या मेमोरी का ऑपरेशन चल रहा है। अगर ये 0 है तो मतलब मेमोरी का ऑपरेशन चल रहा है, ये IO मतलब 1 है अगर, तो ये इनपुट आउटपुट चल रहा है। और ये S0 और S1 ये दो सिग्नल्स होते हैं, इसके द्वारा आपको पता चलता है जैसे कि ऑपकोड फेच हो रहा है या हॉल्ट है, इनपुट आउटपुट रीड है, इनपुट आउटपुट राइट है। जैसे कि ये जो 3 बिट्स आपकी हो गए, एक बार इरेज करके फिर आपको बताते हैं। ठीक है, हाँ अभी बताते हैं आपको। ये जो 3 सिग्नल हो गए आपके, इनपुट, आउटपुट और S1 तो इसमें आप जानते हो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1 0 1 0 के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के जो 3 बिट के कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि ये ऑपरेशन क्या चलता है, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट नहीं, रीड नहीं, ये सिर्फ इन दोनों के ही ऑपरेशन से पता चलता है। ओके, जैसे इनपुट आउटपुट और इस ये वाले ऑपरेशन से, ये आपका इनपुट आउटपुट इधर हो गया और ये वाले रीड और राइट सिग्नल आपके हो गए, ठीक है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इनपुट आउटपुट रीड है, इनपुट आउटपुट राइट है, मेमोरी रीड है या मेमोरी राइट है, ये आपको पता चलता है, ठीक है। आप इनपुट आउटपुट में क्या रीड कर रहे हो और या इनपुट आउटपुट में राइट कर रहे हो, ठीक है, या आप मेमोरी में रीड करो, मेमोरी राइट करो। तो ये 3 जो बिट पैटर्न्स होते हैं उनसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये जो S1 S0 है, तो ये आपके जो वेरियस स्टेटस सिग्नल है कि ये ऑपकोड फेच है या ये हॉल्ट स्टेट है या रीड है या राइट है, तो ये जो स्टेटस सिग्नल है इससे पता चलते हैं। अब आप ये दो सिग्नल्स हैं, होल्ड और HLDA, ये हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। ये होता क्या है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक होता है, इसके लिए एक अलग से एक इंटरफेसिंग ऐसी होती है, DMA कंट्रोलर, उसको ये सिग्नल दिया जाता है। जैसे कि हम आप बता सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, सपोज यू हैव सम इनपुट डेटा, यू वांट दिस इनपुट डेटा टू बी लोडेड इन दिस मेमोरी, ओके। आप चाह रहे हो कि ये इनपुट डेटा मेमोरी में चला जाए, बट आपको ये डेटा कैसे यहाँ जाएगा, यहाँ से आपका प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस में यहाँ से जाना चाहिए, नॉर्मल ऑपरेशन है। बट अगर लार्ज डेटा है तो आपको सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र ही करना है ना, तो इस डेटा ट्रांसफ़र में प्रोसेसर की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर ये प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बस जो है, बस से यहाँ अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो ये डायरेक्ट मेमोरी में चला जाएगा। तो यही होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा दिया जाता है जो कि CPU से पहले रिक्वेस्ट करता है कि हमको बस का कंट्रोल दे दो, क्योंकि बस का कंट्रोल तो CPU के ही पास हमेशा रहता है। बस का मतलब ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये बस का मतलब ये होता है, ये वाले जो कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो ये तो कंट्रोल उसका CPU के ही पास होता है, बट DMA कंट्रोलर ये वाले सिग्नल देता है। ये जो होल्ड सिग्नल है, ये वाला सिग्नल DMA इसको प्रोसेस को देता है कि आप भाई हमको थोड़ी देर के लिए ये जो बस का कंट्रोल दे दिए ताकि हम यहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से प्रोसेसर उसको वापस सिग्नल देगा होल्ड एक्नॉलेज का। HLDA का मतलब होता है ये होल्ड एक्नॉलेज, ये होल्ड के लिए मांगता है, फिर ये होल्ड एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज मतलब उसने एक्नॉलेज कर लिया कि yes I have given the control of the bus to you, now you can transfer the data. Now the DMA controller, it will have to directly load the data from the input to the memory. ये इसके ऑपरेशन होते हैं।
आगे लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस. These are some reset signals. This is also generated by this control unit. So in short में अभी तक what we have learned that control unit controls the various operations of the various operation in the processor. As its name is control unit, मतलब वो कंट्रोल ही करेगा. और आप ये बता सकते हो कि कंट्रोल सिग्नल कैसे कंट्रोल करता है. कंट्रोल सिग्नल वेरियस सिग्नल जनरेट करता है. कौन कौन सा सिग्नल जनरेट करता है? कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, स्टेटस सिग्नल जनरेट करता है और टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है. तो दीज 3 सिग्नल से वो अदर जो पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर हैं उनको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये कंट्रोल यूनिट से ही कंट्रोल होता है. ठीक है. अब हम आपको एक एग्जाम ये वाला जो ये लाइन है, इट जनरेट द वेरियस कंट्रोल स्टेटस एंड टाइमिंग सिग्नल, यही मेन ऑपरेशन है प्रोसेसर, ये कंट्रोल यूनिट का मेन. इसका ये तो समरी में आप ये कह सकते हो, इट्स जनरेट द वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स. तो आपको ये जो दिख रहा है, एक आर्किटेक्चर है, ये 8085 का आर्किटेक्चर का एक पार्ट है, पूरा आर्किटेक्चर नहीं है. यहाँ पे ये मेमोरी है आपकी, यहाँ पे ये दीज आर वेरियस रजिस्टर्स आर देयर, and this portion, this red portion, it is the control unit portion, and this is the ALU in which various arithmetical and logical operations are there. So अब आप इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि ये कंट्रोल यूनिट का क्या काम है. जैसे एक सिग्नल रीड सिग्नल जा रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में वॉट एवर द कंटेंट इज देयर, सो मेमोरी लोकेशन दिस एड्रेस बस विल आइडेंटिफाई दैट मेमोरी लोकेशन. तो इफ द प्रोग्राम काउंटर का ये कंटेंट है 2005, ठीक है, दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस प्रोग्राम काउंटर. सो नाउ एड्रेस बस पे दिस डेटा विल कम 2005. नाउ हियर मेमोरी एड्रेस लोकेशन डिकोडर इज देयर 2005. इट विल गो टू दिस डिकोडर पोर्शन and it will decode that what is the location. Suppose this is the 2005 4F location, 4F is the data on this location. Now अब whether the processor have to write the data or read the data. So this is that main operation in that instruction register. Suppose you have given memory read, so you have to read this instruction. Okay, so now control logic, this is the control logic, this will generate this read signal. This read signal will go here. So 4F data is there, 4F data will come on this data bus. Now it is sent to internal data bus, then to some register. This is the read operation. If you have not sent this data read bar signal, if you not send this signal, then what this processor will not be able to identify whether you have to read the data or write the data. Suppose some other data is there on data bus, if you have given the here write signal, then this will be written out it. Okay, I will tell you, I will write something. Okay, now suppose this is not there, this is a write signal, our write bar is there and it is activated. Okay, so here suppose here this data is not there, here it is, you can tell like 60 is the data. Now memory location is identified here 2005. Now here this write signal comes. If for example write signal comes, then what will happen, whatever the data is present on this data bus, this will get here written, it will be 60. Okay, सो ये कंट्रोल लॉजिक ही आइडेंटिफाई कर रही कि हमको राइट करना है कि रीड करना है. ठीक है, यहाँ पे रीड था तो यहाँ पे जो 4F था वो डेटा इंटरनल बस पे चला गया. अगर यहाँ पे राइट कर दिया, हमने राइट का सिग्नल दे दिया, तो जो डेटा आपका डेटा बस में है वो यहाँ पे जाके राइट हो जाएगा और जो 4F है वो इरेज हो जाएगा. तो यही है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रही कि क्या ऑपरेशन हो रहा है. दिस इज द main work of this control unit, that it is controlling what other parts of the processor are doing. ठीक है. Similarly here also it is the complete architecture of this 8085.
Here in the previous slide we have seen that various control signals are there. These are various control signal. Here also you see that this this signal here, it is going to this ALU also. This if so ALU में अगर आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है या कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है, ये कौन बताएगा? वो ये टाइमिंग कंट्रोल यूनिट बताएगी। ठीक है, आपने तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेमोरी में इंस्ट्रक्शन दिया, मेमोरी में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपका इंस्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, फिर ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया इस वाले पोर्शन में। इस वाले डिकोड होने के बाद अब डिफरेंट ये जो सिग्नल्स हैं आपके, जो वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये जनरेट हो गए। ठीक है, ये चला गया। तो अगर ALU में है तो आपको ये बताएगा कि ALU में एडिशन करना है तो ये एडिशन करवा देगा, सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन करवा देगा, वॉट एवर द ऑपरेशंस आर देयर। और ऑल्सो यहाँ से आप देखिए सिग्नल जा रहा है वेरियस रजिस्टर्स में। ठीक है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो वॉट एवर द डेटा इज फ्लोइंग इनसाइड एंड आउट ऑफ द प्रोसेसर, इट इज ऑल्सो controlled by this control unit. Okay, also there are interrupts. You will study in other lectures as we will proceed with this course. Then various control interrupts are there. So these interrupts is also this timing and control section. This also gives this signal to this interrupt controller. Okay, now in summary what we can say that it generates the control unit, where generates the various control and timing signal, control, timing and status signal. All these three signals are there. These are generated by this control unit. Then based on this control signal, other attached hardware know what to perform and when to perform. ठीक है, अदर जो अटैच्ड हार्डवेयर हैं वो कंट्रोल सिग्नल के द्वारा उन्हें क्या परफॉर्म करना है और कब परफॉर्म करना है ये पता चलता है। ठीक है, ALU में एडिशन करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये कंट्रोल यूनिट ही बताएगा। ठीक है, मेमोरी में रीड करना है या राइट करना है, ये कंट्रोल यूनिट ही बताएगा आपको। ठीक है, इट कंट्रोल्स द डेटा फ्लो थ्रू वेरियस रजिस्टर्स ऑफ द प्रोसेसर एंड ALU। ठीक है, कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स रहते हैं, उसी से कंट्रोल डेटा फ्लो थ्रू द यूनिट ऑफ द रजिस्टर। अगेन ये भी सेम है, इससे भी आपको कंट्रोल यूनिट कैसे कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिग्नल के बारे में पता चलता है। यहाँ से आपने 16 बिट एड्रेस बस है, यहाँ से एड्रेस आया, यहाँ पे आया एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे एड्रेस डिकोड हो गया, सपोज डिकोड हो के ये वाली मेमोरी लोकेशन आपको पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ से रीड और राइट सिग्नल जाएगा, जो भी सिग्नल रहेगा। अगर राइट करना है तो वॉट एवर डेटा यहाँ पे जो होगा, ये वाला डेटा जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर रीड है। और अगर राइट सिग्नल एक्टिवेटेड है, राइट अगर राइट है तो ये वाला डेटा जो जाके इसमें चला जाएगा। ठीक है, और अगर रीड है तो वॉट एवर डेटा इज इनसाइड दिस मेमोरी लोकेशन, इट विल गेट ऑन टू दिस डेटा बस। ठीक है, अगर राइट है तो वॉट एवर डेटा इज देयर ऑन द डेटा बस गेट लोडेड इन द मेमोरी लोकेशन, एंड रीड में वॉट एवर डेटा इज इन द मेमोरी लोकेशन, it get loaded in the data bus and then it will come into some register. And also IO remember whether it is input operation or output operation. This is identified by this control unit. So control unit is a very important part of the processor. It controls what the other peripherals have to do, when to do and how to do. All those things are controlled by this control unit. Okay, let's stop here. In the next lecture we will study about our register, that is third part of this processor, register. If you have any doubts you can please ask in the comment section. Please like this video and share and subscribe, and thanks for watching.